सो लास्ट वीडियो हमारा एक जगह अटक गया था, विच वाज आई वाज वेरी सॉरी. So basically we were into the cost audit. Cost audit की definition is defined by number of institutes like CMA Institute and CMA institutes. So now we are moving into the module part. So what module says, what is written in the module. Okay. So first of all we are getting into the cost accounting. Like what is cost accounting is same I have defined in identification, classification, measurement and assignments of cost to various cost objects. Okay. Then it will become the cost records, then cost statements, and again the cost accounting standards will define all of these things. Like every standard define everything, so cost accounting standards have its own standards to define how to measure the records, how to create a minimum disclosure requirements, and how to make it comparable, consistent and completeness. So talking about cost audit as per SEMA Institute is the verification of the correctness of the cost accounts. Okay, verification and correctness of cost accounts, so the adherence to the cost accounting plan. Okay. Okay. So cost audit be the audit of cost of production of any odd product, services or activity of the basis of accounts maintained by an enterprise. So what I have told, like cost audit किसका हो सकता है, cost of production का हो सकता है, सर्विस कॉस्ट का हो सकता है, एक्टिविटी का हो सकता है. ऑन दैट बेसिस जो अकाउंट्स आपने बना रखे हैं, जो एंटरप्राइज ने अकाउंट्स बना रखे हैं, उसका ऑडिट होगा. What ICMA Institute says, a system of audit for review, examination and appraisal of cost accounting records. Okay, so if I talk about this part, cost audit institute defines SEMA. What SEMA says and what CMA says. Okay, so what SEMA says is verification and correctness of cost accounts, adherence to the cost accounting plan, or in other words we can say verification of cost of production, activity, services in accordance with the accepted principles of cost accounting. So अगर हम छोटा छोटा लिखे, it's like verification of cost accounts. Okay, be it cost of production, service cost and activity cost on the basis of cost accounting principles. ठीक है. अब ये टिडबिट्स लिखने से क्या होगा कि आपका रिवीजन है स्मूथ हो जाएगा, राइट. अगर हम इस पे जाएं इंस्टीट्यूट के सीएमए की डेफिनेशन पे, so is the system of audit for review, examination and appraisal of the cost accounting records. Review, examination and appraisal of the cost accounting records and attendant information required to be maintained by specified industries as mandated by applicable companies act and blah 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 blah. Okay, so we'll check review, examination and appraisal of cost accounting records. Perfect. As per required industries defined in Companies Act. That's it. ओके, तो सीमा का डेफिनेशन हो गया, सीएमए का डेफिनेशन हो गया. एक बार फिर से इसको ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है. कॉस्ट ऑडिट फॉर सीएमए फाइनल्स, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट 5% हमारा सिलेबस में कवरेज है. एमसीक्यू थ्योरी क्वेश्चन आएंगे. ऑडिट किसका करेंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट स्टेटमेंट्स या कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स, है ना. उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स और कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो ऑडिट होगा, कॉस्ट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स बनेंगे, स्टेटमेंट्स बनेंगे, देन हम ऑडिट करेंगे. ऑडिट किसका हो सकता है, प्रोडक्शन कॉस्ट का हो सकता है, सर्विस कॉस्ट का हो सकता है, अदर कॉस्ट का हो सकता है. ठीक है. तो कॉस्ट ऑडिट का डेफिनेशन हमारे पास आता है. कॉस्ट ऑडिट का डेफिनेशन इंस्टीट्यूट में दो इंस्टीट्यूट हमारे बोलते हैं, सीमा एंड सीएमए.
इसका दोनों का हमने डेफिनेशन देख लिया है। ठीक है, अब हम टॉक करेंगे इनसे। अब एक जनरल डेफिनेशन दे दीजिए। Cost audit is an independent examination of cost statements, cost records, or related information or entity with a view to express an opinion thereon. Standards on cost auditing provides guidance to cost auditor through each step of audit process with regards to the audit procedures to follow. हमको क्या याद करना है, हमको वो पकड़ने का है। ठीक है, क्या पकड़ने का है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड जो हमने पढ़ा, हमने डेफिनेशन में सबसे पहले कॉस्ट स्टेटमेंट कॉस्ट रिकॉर्ड ही दिया, और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड में इन्होंने एंटर की होगी वो। ठीक है, इससे क्या होगा, ओपिनियन जनरेट होगा। ठीक है, ओपिनियन जनरेट हुआ, ओपिनियन जनरेट होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हमारा ओपिनियन जनरेट हुआ लेकिन हमारी टास्क बारी चली गई। एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ठीक है, अब ओपिनियन बन गया, कॉस्ट ऑडिटर के पास कॉस्ट स्टैंडर्ड्स है, उसके बेस पे ऑडिट के प्रोसीजर्स लाएगा, ऑडिट करेगा। बराबर। और तुमको समराइज में चाहिए तो अपन समराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, इधर गए, समराइज कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑडिट का एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन करने के बाद इसका रिकॉर्ड का, स्टेटमेंट्स का, अदर इन्फो का, इनका एग्जामिनेशन हुआ, एक ओपिनियन बना। ओपिनियन किसके बेस पे बनेगा, ओपिनियन बनेगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, और वो कौन बनाएगा, कॉस्ट ऑडिटर। मतलब ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, कॉस्ट ऑडिटर इनके बेस पे ऑडिट करेगा, एक ओपिनियन बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपना ये पॉइंट हो गया ख़त्म। अब आई अगली बात। ठीक है, सारे प्रैक्टिसेस, सारे प्रोसीजर्स, जो भी चीज़ें हैं एज पर कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, किसने बनाए, ICMA इंस्टीट्यूट ने बनाए। ठीक है, व्हाट इज़ कॉल्ड इज स्टैंडर्ड्स ऑन कॉस्ट ऑडिटिंग। बराबर, ये सब तो लिख सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग और बेस्ट गाइड टू कॉस्ट ऑडिटर्स, ये सब अभी पढ़ लिया। ठीक है, अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ही स्ट्रिंजेंटली, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिए तो स्टैंडर्ड्स की वजह से कॉस्ट का एक कंट्रोल स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। कंपनी का पैसा कहाँ से बच सकता है, कॉस्ट कम करके। कॉस्ट कम कैसे होगी, कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रिंजेंट रख के। कॉस्ट कंट्रोल अच्छे रखे तो हमारा कॉस्ट ऑडिट भी अच्छा होगा। ठीक है, और कंपनी का प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो cost auditor to streamline audit, better planning, better documentation, and effective implementation, which is overall improve the quality of audit. ठीक है, cost auditor will go carefully through the standards and make best use of them. अगर उसको ज़रूरत है कि लास्ट ऑडिट में क्या हुआ, लास्ट ऑडिट में क्या हुआ, तो वो कॉस्ट ऑडिटर पुरानी रिपोर्ट चेक कर सकता है, डिटेल में हर एक पॉइंट चेक कर सकता है। उसके बाद कॉस्ट ऑडिटर अपने काम पर रिलाई होगा। बराबर, can rely on the work done by the auditor expert. स्कोप क्या है, ठीक है, कॉस्ट ऑडिट का स्कोप क्या है, हम लोग पढ़ेंगे स्कोप। कॉस्ट ऑडिट का काम क्या होता है, सारे कॉस्ट कंट्रोल्स को, सारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स को, सारे कॉस्ट स्टेटमेंट्स को ढंग से बिट बाय बिट चेक करें, जिससे कॉस्ट डेटा जो एंटर हुआ है वो एक्यूरेट हो। बराबर। अब एक बात बताइए, कॉस्ट का डेटा हमने इकट्ठा कर लिया, लेकिन अगर हम उस डेटा पे एनालिसिस करें तो क्या हमें कंपनी का परफॉर्मेंस पता लगेगा कि नहीं लगेगा, कि सी ओ जी एस कितना परसेंट ऑफ सेल्स आ रहा है पिछले क्वार्टर में, और सी का कितना परसेंट आएगा नेक्स्ट क्वार्टर में। तो हमें एक समझ में आएगा ना कि भाई अगर परसेंटेज वाइज जाए तो परसेंट रहना चाहिए, अगर 10% कॉस्ट है या 20% कॉस्ट है, 60% कॉस्ट है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में 60% होना चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, what is the major chunk of reasons, are they explainable or not. So this is where what the cost comes into play, कि कॉस्ट लग कहाँ रही है, कंट्रोल कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटिटी का परफॉर्मेंस समझ में आता है, तो कॉस्ट ऑडिट के अंदर ये सब चीज़ें कैप्चर हो जाती है। तो मैंने तुमको एग्जांपल दिया, अगर हम एग्जांपल से इसमें लिखें, एग्जांपल लिखें। ठीक है, स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट, स्कोप ऑफ
cost, what is happening? Cost audit स्कोप क्या है? is to check cost data and its accuracy. Why? It shows companies performance. ओके, आप लोग जो लिखो मॉड्यूल का लैंग्वेज लिखना थोड़ा समझ में आए, मैं तो समराइज फॉर्म में लिख रहा हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ सके, ये एग्जाम में मत लिख देना, बट रिवीजन पर्पसेज दे आर बेस्ट। ओके, एग्जाम्पल में जाए कि COGS परसेंट ऑफ सेल्स फर्स्ट क्वार्टर 70%, सेकेंड क्वार्टर 80%, बाय ऑडिट चेक। ओके, तो इंटरनल चेक भी हो सकते हैं कॉस्ट ऑडिट में, रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड सेक्टर्स ही नहीं, और भी मतलब हम लोग हमारे इंटरनल चेक भी कर सकते हैं, बराबर। सो ये हो गया। अगेन ICWAI क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑडिट इज एन ऑडिट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ minute details of expenditure. It's not minute, it's minute. An audit of efficiency of minute details of expenditure. It's mainly a preventive measure, a guide for management policy, and a decision and a barometer of performance. Okay, so ये वाला स्कोप भी लिखोगे ना, द मिलता जुलता, हाँ तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है। UK, what UK says is verification in the correctness of the cost accounts, check on the adherence to the cost accounting plan। ठीक है, ये हुआ। अब अगर हम देखें आज के ज़माने में क्या हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही है, ई-कॉमर्स आ रहा है, मॉडर्न स्टोर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो नए नए इनोवेशन आ रहे हैं बिजनेसेस में, टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, किसी ने सोचा होगा कि गगनयान प्रिपेयर हो रहा है तो गगनयान पे कॉस्ट कितना लग रहा होगा। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई, स्पेस स्टेशन पे गई और वहाँ से आई, तो उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ होगा, क्या कॉस्ट कंट्रोलिंग स्ट्रैटेजीज थी, क्या चीज़ हम लोगों ने सेफ्टी में ध्यान रखते हुए कॉस्ट कटिंग नहीं, कॉस्ट ऑप्टिमाइज की, कॉस्ट कंट्रोल की। तो इस डायनेमिक वर्ल्ड में, इस कंपेटिटिव में, इस कंपटीशन में नंबर ऑफ नए प्रोडक्ट और सर्विसेज आ रही हैं, बराबर। तो अगर मार्केट में कंपटीशन है तो आपको प्राइस कंपटीटिव रखना पड़ेगा, क्वालिटी कंपटीटिव रखनी पड़ेगी। ठीक है, सारे स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक अप्रोप्रिएट कॉस्ट होनी चाहिए। तो कॉस्ट ऑडिट इस चीज़ का डिटेल वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, like what is the costing techniques you have used, costing systems what you have used, cost accounts how many you have prepared, तो वो रिकॉर्ड्स जो आपने प्रिपेयर किया उसके बेस पे एक डिटेल वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, सो बिजनेस के हिसाब से, एक एफिशिएंसी के हिसाब से भी जाए, एक इम्प्रूवमेंट के हिसाब से भी जाए, तो कॉस्ट ऑडिट किस किस चीज़ में हेल्प कर सकता है कि हम एक कॉस्ट निकाल रहे थे, एक एलिमेंट पे बराबर कंट्रोल रहे, हमारा सेल्स प्राइस और मार्जिन सेट रहे। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में जाए, ठीक है, एक तो कॉस्ट डिसाइड हो जाए। ठीक है, कॉस्ट के बेस पे सेल प्राइस डिसाइड हो जाए। ठीक है, डिसाइड मतलब डिसीजन मेकिंग हमारा तैयार हो जाए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग होते ही एक्टिविटी का, कंपनी का परफॉर्मेंस तैयार हो जाए। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये सबके पीछे कौन काम कर रहा है? बजट्स। तो बजट्स, बजटरी कंट्रोल्स हमारे रेडी हो जाए। ठीक है, वेस्टेज कम हो जाए, बराबर। इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक मैच हो जाए। ठीक है, तो ये सब तो क्या है कि एक इनबिल्ट प्रोसेस है। जब आप कॉस्ट ऑडिट को इंटरनलाइज कर लोगे, समझ जाओगे, तो एक ऑडिटर का माइंडसेट अपने दिमाग में लाओगे, क्वेश्चन आंसर लिखते वक्त, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली पेंसिल से लिखती जाएंगी एंड यू विल ग्रैब द डिग्री। ओके, so here I am closing the lecture.
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा रहा क्या रहा. आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑलवेज. थैंक यू सो मच.